Hello everyone, good morning. Welcome you back again in the topic triangle. Today actually we were about to begin the next part of the topic, that is the area of triangle. But this question, which was last one, I had asked you to solve it all by yourself. I'm not sure that whether you got this answer correct or no. So I'm just giving you a kind of a solution of this. Quickly verify your answer if you have done, and if you haven't done it, please make sure that you complete this. Okay. I think your school must be deciding for your PT1 maybe by end of this month, maybe by in next week you might get your timetable, and maybe end of the month, maybe 25 July to 30 July तक आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा. ओके, PT1, and you have got syllabus for your PT1. Start preparing, I would say quickly start preparing. देखो, see, try to understand PT1 का preparation itself is your board preparation, let me tell you. Okay, so one by one when you start preparing your topic for PT1, surely that will be very much helpful for you for your board examination. So make sure that you as early as possible you start your preparation. We have finished the complete syllabus of your PT1. Okay, this is a triangle going on which might get finished by tomorrow, or maybe today also it might get finished. So I'm planning to finish it today itself, or maybe by tomorrow. Okay, we'll finish it by tomorrow, but syllabus is completed. So let us start working on it. Of course, I'll be sending some homework as well for mathematics. Before I start sending the homework, you should start revising it. When you revise, the sent homework will be done in a short time. Okay, so be serious now, please be serious. Okay, doubt send करो, work करना शुरू करो, जल्दी से जल्दी pending work complete करो, whatever the thing possible that you can complete it. देखो, आपका सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, देन मुझे लगता है ये ट्रायंगल है, एंड देन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. ऑल आर इजी एक्सेप्ट ट्रायंगल. ट्रायंगल में भी इजी है, लेकिन डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए डिफ़िकल्ट ज़्यादा है. लेकिन हाँ, टेक्स्ट बुक के बाहर ज़्यादा कुछ आपको स्कूल वाले तो नहीं पूछेंगे, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग टॉट टू यू. So that at least you can start working so that the things will be done. Okay, so even I will start working on the revision. Even you can start from your side, so that hand in hand we work on the same and we'll complete as early as possible. So from today itself, let us start from today. Maybe from today itself, let us continue, let's work on it and get the things done. Okay, so I hope that you all will start doing it. So आपका जो PT1 होगा, that is end of this month. Fine. Chalo, anyway, let's start working on this particular question. How is this question to be completed? Try to understand, it's a Pythagoras theorem question, and surely you have to go for LHS, RHS. So I had already given a hint that consider this as x and x, all three are equal, and use LHS and RHS. So I have LHS. देखो, the common side in this all the three triangle is nothing but this AB. So AB, I might keep it as it is without any change in that LHS. So 8 times AE square is equals to 8 into bracket AE square. If I check AE square, here is AE, it is AB square plus 2x the whole square. So it is AB square plus 2x the whole square means 4x square. And as I have said, I am not going to change AB, let me keep it as it is, plus 32x square. And x, of course, I need it, the thing in x, so I have kept it as it is. And RHS, if I take 3AC square plus 5AD square. So 3 into AC square is AB square plus 3x the whole square. Hope you understand. AC square is, ये है आपका AC square. It is AB square plus 3x the whole square. So it is AB square plus 9x square plus 5 times AD square. How about AD? AD square is AB square plus x square. So if I multiply by 3 here, the 3AB square plus 9 3 is a 27x square plus 5AB square plus 5x square, right? So it's very clear. I have 3AB square plus 5AB square as 8AB square, and this has 32x square. So I think you got the answer. It was easy, right? तो सिंपल था. पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो कुछ क्वेश्चंस है जो डिफिकल्ट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड इन द ड्यूरिंग दैट क्वेश्चन, राइट? फाइन. So let's start the next one, that is theorem, area of similar triangle. See, try to understand, again we are jumping back into the area. The sequence in the textbook is like that. First we had area in the textbook, and then we have Pythagoras theorem. But
But why I change the sequence? Because I want you to again come back to the similarity, so that the similarity revision is done again. Okay, so similarity concept we are again going to revise in this particular section, as well as the new concept we are going to understand. So what is the question says? Let me just tell you. If two triangles are similar, see, triangle ABC is similar to triangle PQR, then we have two properties. One, its angles are equal. Angles are equal. I'm not writing that how which angles are equal. And the second one is sides are in proportion. That means AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR, right? This you know. So one more property when triangles are similar we are going to learn, that is area of triangle ABC upon area of triangle PQR. So this is about area of similar triangles. They are proportional to AB square upon PQ square. That means square of corresponding side. BC square upon QR square and is equals to AC square upon PR square. So what we understand here is one more property we have to prove now for similarity of the triangle. So that's it. So let's start the theorem. First is this particular theorem है जो आपको अभी दिख रहा है बोर्ड पे. So let's continue solving the theorem, proving the theorem. Very very important. Again, let me just tell you, important theorem. So this is the last theorem of your triangle topic, that is fourth one, right? So let's understand what the question is. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं. देखो, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. सो वही जो अभी हमने देखा वही प्रूव करना है. तो चेक करते हैं, दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे, मे बी दे वुड लुक सिमिलर. तो दिस आर द एनी टू ट्रायंगल्स आई चूज कंसिडरिंग दैट दे आर सिमिलर. ठीक है, आई जस्ट नेम इट ABC and PQR. ठीक है, तो what is given here? The given is a triangle ABC is similar to triangle PQR because I know that they are similar. To prove, क्या प्रूव करना है मुझे? Try to understand. मुझे प्रूव यही करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equals to AB square upon PQ square is equals to BC square upon QR square and is equals to AC square upon PR square. ये मुझे प्रूव करना है. ओके, कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन. क्या करना है कंस्ट्रक्शन देखते हैं. देखो, ये तो क्लियर सी बात है कि वी आर गिवन समथिंग दैट्स अ ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड वी हैव टू प्रूव अबाउट एरिया. So when I want to find the area of triangle, one thing is very sure that I need something as perpendicular. So I have to draw height in both the triangles. So say AD and PM are those heights. So draw AD perpendicular to BC and PM perpendicular to QR, we can say. And we can start the proof now. Let's start the proof. In the proof, first thing is very clear that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये तो clear है ना? If triangles are similar, two things I can say. One is angles are equal and second is sides are in proportion. So I can write AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. I can call this as equation number 1. Now, is it possible for you to prove these triangles are similar as well? ये जो छोटे वाले triangle है ये भी similar है, because see, try to understand, when I talk about area, I will 100% sure I am going to get the side AD and PM as a height. So I have to know about those sides as well. So those sides can be possible by making these two triangles similar. ये जो दो triangle है इसको similar करके I can get those side AD and PM. तो let us try that कि उसको similar कैसे prove करेंगे. तो one thing is there कि now in triangle ADB we have done this in similarity and triangle PMQ. Is it angle D, that means ADB, D is equals to angle M is equals to 90 degree in those two triangles, isn't it? It is 90 degree angle और ये angle equal है. And second thing, angle B is equals to angle Q. Reason क्या होगा? CAST, isn't it? Angle B and angle Q are the part of the large similar triangle, therefore they are of course equal. So we have triangle ADB similar to triangle PMQ, and this is by AA test.
Clear? So now what I can do is, if triangles are similar like the previous one, I can take sides in proportion. So I get AD upon PM is equals to DB upon MQ is equals to AB upon PQ, and I'll call this as equation number 2. Reason is CSST. Same here also I can write CSST. That's it. ओके, सो यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को. अभी इस दो जो भी दिख रहे हैं आपको दो इक्वेशंस को, इसको ठीक से समझ लो. तो मैं बस आपको वो हाईलाइट करके दिखा देता हूँ. इन दो इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ मैं. ये दो इक्वेशंस देखो कैसा है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, पता है क्या? ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पर भी ए बी अपॉन पी क्यू है. इफ दोनों में ए बी अपॉन पी क्यू है, इसका मतलब क्या हो गया पता है? ये दोनों इक्वली है, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है. ओके, वी हैव दिस टू इक्वेशंस आर इक्वल. अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट, दैट विल डिस्कस. तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया. अभी क्या करना है, नाउ विल टेक डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो देखो यहाँ तक तो हमने जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पता था वहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर दिया. नाउ आई हैव टू टेक डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is equals to, isn't it, half into BC into AD divided by, it will be equal to half into QR into PM, half into base into height. बराबर है. हाफ एंड हाफ इज गोइंग टू गेट कैंसल. तो BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM, ये आ गया. बराबर है. हाउ इज BC अपॉन QR फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1? इफ यू लुक एट क्लियरली, इक्वेशन नंबर 1 BC अपॉन QR यहाँ पे है, इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन PQ. हाँ, ऑफकोर्स यू विल से इट इज ऑल्सो इक्वल टू AC अपॉन PR, बट मुझे AB अपॉन PQ देखना है. तो AB अपॉन PQ को देखो, बस इसको मत देखो. ठीक है, AB अपॉन PQ को. तो BC अपॉन QR की जगह पे मैं AB अपॉन PQ लिख सकता हूँ. इंटू AD अपॉन PM, देखो कहाँ AD अपॉन PM, ये रहा AD अपॉन PM इन सेकंड इक्वेशन. इट इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन PQ, चेक कर दो. तो इट इज इंटू AB अपॉन PQ. तो व्हाट डू आई गेट? इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. क्लियरली गॉट इट? हो गया. तो जो यही तो मुझे प्रूव करना था. फाइन. अभी आप बोलोगे बचा हुआ क्या करेंगे? तो आपको तो पता है कि AB अपॉन PQ इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC अपॉन QR फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इट इज ऑल्सो इक्वल टू AC अपॉन PR. तो ये डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू, हाँ बस लिखना पड़ेगा. वो लिखना कैसे है वो मैं कहाँ पे दिखाऊँ आपको? हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ. ये रहा. So now in this case, but from equation 1 we have AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. Therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to, it is equals to AB square upon PQ square. ये तो हमें यहाँ पे मिल गया है. सो AB and AB upon PQ is also equal to BC upon QR, so it will be equal to BC square upon QR square is equals to AC square upon PR square. So that's it, proof is done. तो ये मैं बस डिलीट कर देता हूँ. आपको समझ में आ गया वो लिखना कैसे? चलो ये रहा आपका प्रूफ आपके सामने रेडी. ओके, सो सी दैट you do it all by yourself. Do not copy it down. Again I repeat, don't copy it down, otherwise again you have to remember, again you have to prepare. तो बिल्कुल कॉपी मत करना, 2-3 बार वीडियो देखो चाहिए तो. कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है. हमने ऑलरेडी जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट इससे पहले देखा है. ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमने सॉल्व किया हुआ है. ऐसे वाले क्वेश्चन मुझे लगता है कुछ 16 एंड 17 क्वेश्चन है, मुझे आई रिमेंबर दैट. तो वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है. ओके, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा. ओके, नॉर्मली मैं ऐसे करता हूँ, जो आगे है उसका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लेता हूँ. ओके, सो दैट यू विल बी हैबिचुअल फॉर दैट काइंड ऑफ थ्योरम के लिए आप रेडी रहो. तो इसीलिए मैंने ऐसे किया हुआ रहता है. तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, लगना नहीं चाहिए आपको. ठीक है, तो खुद से करो, इजीली आपको समझ में आएगा. एक आध दूसरा स्टेप नहीं आ रहा है तो यू कैन वॉच द वीडियो, यू कैन लुक एट दिस एंड देन गेट इट डन. फाइन. So done, that's it. So now we have got another new property, that if triangles are similar, then this one you need to remember. If triangles are similar, sides are in area is directly proportional to square of corresponding sides, और रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ corresponding sides. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इसका यूज करेंगे.
अभी हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है. तो बिफोर आई यूज़ और बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंप्लीट योर थ्योरम. ये जो थ्योरम है इसको कंप्लीट कर दो, सॉल्व करो खुद से, एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. ओके, चेक करते हैं. ये वाले क्वेश्चंस हमें अभी सॉल्व करने हैं. कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वही है, बस उसका यूज़ करना है. देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स क्या दिया हुआ है, सिमिलर है. तो इफ ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन 2 वी आर सॉल्विंग, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, then I know that its area of ABC upon area of triangle DEF is equals to AB square upon DE square. Okay. Why other side also I can take like BC square upon EF square, but जो दी हुई है वही साइड आई एम गोइंग टू चूज. तो ए बी एंड डी तो दिया हुआ है, तो वही चूज करूँगा मैं. तो इट इज इक्वल्स टू ए बी मतलब 1.2 अपॉन 1.4, 1.2 स्क्वायर 1.4 स्क्वायर. यहाँ पे एक छोटी सी गलती करते हैं बच्चे, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट डिवाइडिंग. ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी. ये इट इज़ गोइंग टू बी 1.2 अपॉन 1.4 द होल स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी हेल्पफुल. होल स्क्वायर करना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो इट विल बी 12/14 द होल स्क्वायर. ये स्टिल रिड्यूस हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, तो 6/7 द होल स्क्वायर, एंड द आंसर इज 36/49. तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिड्यूस इट. बेटर टू टेक द होल स्क्वायर. ठीक है, गेटिंग इट. चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड वन, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ एंड एक एरिया दिया, ब्ला 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 दिया. चलो ठीक है, साइड कौन सी दी हुई है, बीसी एंड ईएफ, तो उसी के बारे में मैं सोचूंगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर. पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया. फॉर्मूला मतलब जो मुझे यूज़ करना है, राइट. नाउ आई विल बी पुटिंग द वैल्यू. ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी स्क्वायर कितना है, 9. डी एफ कितना है, 16. बी सी स्क्वायर कितना है, 2.1 द होल स्क्वायर, एंड ई एफ स्क्वायर, ई एफ मुझे फाइंड करना है. अभी हम लोग यहाँ पे ई एफ फाइंड कर सकते हैं. तो नॉर्मल गलती यहाँ पर क्या होती है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये क्या करते, क्या है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, देन शिफ्ट करते हैं, फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं. Terrible. Why can't I take square root here itself right now on this particular position, taking square root of both the side? If I take that, isn't it things will get reduced? कैसे? अभी इसका स्क्वायर रूट किया लेफ्ट हैंड साइड का, तो आई गेट 3/4, एंड इसका स्क्वायर किया आई गेट 2.1 अपॉन ई एफ. हो गया, दैट्स इट, डन. तो ई एफ इज इक्वल्स टू 2.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3. तो ई एफ इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 4, आंसर कितना आएगा, 2.8 में भी सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, सेंटीमीटर होगा. ठीक है ना, ये देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है. दैट्स इट, डन. ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना. चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके विल गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. वही चीज़ है, बस सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, उसका बस यूज़ करना है, एंड सिमिलैरिटी दिमाग में रखना है, और कुछ नहीं. ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी. चलो हम लोग अपना अपना ड्रॉ करते हैं. ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, तो ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी. तो चलो ठीक है. डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, अच्छा ओके, ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ सी डी. ठीक है, कोई बात नहीं. तो कैसे यूज़ करना है देखेंगे. सी डी को अगर एक्स किया तो ये 2x हो जाएगा, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट. देखेंगे कैसे यूज़ करना है, विल सी. डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए ओ बी एंड सी ओ डी. लेकिन ओ कहाँ है वो पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ. कुछ नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पे. ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ये डायग्राम तो पहले भी आपने बहुत बार देख चुका है, बीपीडी में देखा है, सिमिलैरिटी में देखा है. डू यू रिमेंबर दैट कि व्हेनेवर यू गेट दिस काइंड ऑफ अ ट्रायंगल, दीज शेडेड रीजन्स कैन बी मेड सिमिलर. ये जो शेडेड रीजन्स है, दीज आर ऑलवेज सिमिलर, राइट. तो हम लोग इसको सिमिलर कर सकते हैं, है ना. तो ट्रायंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ ए कर सकते हैं. बी ओ ए कैसे कर सकते हैं, बाय ए ए टेस्ट. मैं लिख रहा हूँ सीधा डायरेक्टली, आपको ये प्रूव करना है वो ए टेस्ट इक्वल है. कैसे, एक तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल. इफ यू वांट टू मेक दिस एंगल अगेन अल्टरनेट, तो करस्पॉन्डेंस भी करेक्ट लिखना आना चाहिए, तो मैंने लिख के रखा हुआ है. तो बाय ए टेस्ट आई गेट द ट्रायंगल सिमिलर. ये आपको प्रूव करना है, डोंट राइट डायरेक्टली, अदरवाइज यू विल बी लूजिंग योर मार्क अननेसेसरी. तो पूछा क्या है, देखो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल सी ओ डी एंड सॉरी ए ओ बी एंड सी ओ डी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
पहले जो है वही लिखना है, ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी सी ओ डी, ओके, प्रॉपर करस्पॉन्डेंस में लिया, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। आप बोलोगे अभी ए बी स्क्वायर ने सी डी स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि आई एम गिवन समथिंग अबाउट ए बी एंड सी डी, तो देयरफॉर आई टुक दैट। ओके, व्हाट आई नो अबाउट ए बी अपॉन सी डी, अगर मैंने ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी देखा, सी डी को इधर शिफ्ट किया, तो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा, राइट, बराबर है ना। तो बस ये 2/1 तो होल स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा 4/1, तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:1। कितना सिंपल था, बस ये आपको करना आना चाहिए, प्रूव करना आना चाहिए, दैट्स इट, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी वही कैटेगरी है। देखो, इफ़ टू एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ओके, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, एक तो मुझे पता है, दो चीज़ें मुझे पता है इसमें, कैन यू टेल मी दो चीज़ें क्या है? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मुझे दो चीज़ें ये पता है कि एक तो ट्राइंगल सिमिलर है, दूसरा एरिया इक्वल है। ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, एंड दूसरा क्या है? एरिया इक्वल है। चलो तो हम लोग ये करते हैं, हमें कुछ डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट, बट मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे शुरू कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आई नो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्या है? दोनों गिवन, ठीक। अभी हम सिमिलैरिटी का यूज़ करते हैं, सिमिलैरिटी का यूज़ करते हैं। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हाट डू यू नो अबाउट देयर एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, दिस टाइम आई एम यूजिंग ऑल द थ्री साइड्स बिकॉज नथिंग इज मेंशन अबाउट साइड, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कुछ नहीं दिया, तो तीनों साइड मैंने लिख लिए। पिछले क्वेश्चन में भी इफ यू वांट टू टेक ऑल द थ्री साइड्स यू कैन राइट, एंड while noting down the value you can note down only for one, even that is okay, there is no problem. So it's not necessary that always you have to use one side only. I just use it to reduce my efforts. So you want to reduce your efforts, you can learn that how to choose the side, otherwise take all the three sides, there is no problem. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड्स ली हुई है। अभी मुझे क्या पता है कि इन दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। ये दोनों एरिया क्या है? इक्वल है। इक्वल मतलब रेशियो क्या आना चाहिए? 1 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है, ये क्वेश्चन जो है ये टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दो सिर्फ लेते हैं रेशो, तो व्हाट डू आई गेट? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। देखो आपको समझ में आ गया क्या? अभी तक आ जाना चाहिए। सिमिलरली इफ आई यूज दिस इक्वल टू 1 देन आई गेट बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। सिमिलरली इफ आई मेक दिस इक्वल्स टू 1 बिकॉज ऑल आर इक्वल टू 1, तो आई गेट ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। तो what does it mean? All three sides are equal. If all three sides are equal, we get triangle ABC is congruent to triangle PQR. And यहाँ पे रीजन क्या होगा? SSS टेस्ट। देखो सिमिलैरिटी था, सिमिलर था, उसको हमने क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इंटरेस्टिंग है ना? बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलो सॉल्व करो खुद से, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। लेकिन जब भी आप लोग सॉल्व करोगे तभी देखना मत, कॉपी नहीं करना, खुद से करो, ठीक है। ये टारगेट हमेशा रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन फिगर तो कुछ दिया हुआ है डायग्राम में 90 दिया हुआ है, देखो 90 दिया हुआ है, एंड वर्टिकल ऑपोजिट ट्रायंगल तो इक्वल होता है, पता है, मतलब ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, काम खत्म। आप लोग खुद से भी फाइंड कर सकते हो इसका आंसर, फिर भी लेट मी डू इट। आपको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए, मतलब इसका एरिया फाइंड करना है। ये दिया हुआ एरिया पी ओ बी का, तो ट्रायंगल पी ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ओ बी इज क्यू ओ ए। ये है बाय ए टेस्ट। मैं फिर से बोलता हूँ, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट राइट दिस एज इट इज़ हाउ आई एम डूइंग इट, यू हैव टू प्रूव इट। कुछ नहीं, सिंपल है, दो एंगल बस इक्वल करने, और क्या नहीं है। देन वी नो दैट ट्रायंगल पी ओ बी करस्पॉन्डिंग, ठीक से लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो मुझे साइड्स कौन से दिए? पी ओ एंड क्यू ओ, तो पी ओ एंड क्यू ओ करेक्ट है।
तो पी ओ स्क्वायर अपॉन क्यू ओ स्क्वायर। पी ओ भी कितना एरिया दिया है 150 दे के रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए तो वो मुझे लेना है। पी ओ कितना है, पी ओ 5 है अपॉन 7 है, तो 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ले सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, अभी लाइक और प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते। वाई यू कैन नॉट टेक अ रूट ऑफ इट, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो 150 दिया है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसका रूट कैसे निकालेंगे। दैट्स वाई यू कैन नॉट टेक अ रूट ऑफ बोथ द साइड लाइक और प्रीवियस क्वेश्चन विच वेयर आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे तो आइडिया वही है कि आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करो। तो ये क्यू ओ है, यहाँ पे भेज देते हैं, ये सभी यहाँ पे लेके आते हैं। तो 150 इंटू 49 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए, बराबर है क्या। यहाँ तक समझ में आ गया, शिफ्ट किया और कुछ नहीं किया। तो 25 1 25 6 मे बी एंड 6 इंटू 49 इज योर आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए। दैट्स इट, ईजी है या डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल है, बस आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो क्योंकि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। दैट्स इट, ओके डन, आइडिया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो क्वेश्चंस अलग हैं, मतलब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के नहीं है, ये क्वेश्चन होने के बाद वो करेंगे, इससे भी इजी है वो। ठीक है, ये देखते हैं, ये डायग्राम इससे पहले भी हमने देखा हुआ है, होप यू रिमेंबर दैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का नहीं है बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेक करते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। इज देयर एनीथिंग एनीवेयर मेंशन कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेंशन नहीं किया कि वो ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन हाँ मुझे प्रूव करना है या फिर उसके रेशियो फाइंड करना है, मतलब इट्स वेरी क्लियर, आई मस्ट हैव टू फाइंड और मस्ट हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इफ आई हैव टू प्रूव ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन which property I can use here? You remember something कि P is a midpoint and R is also midpoint, देख लो एक बार ठीक से, P and R are the midpoints, बराबर है ना। तो अपना वाला कौन सा वाला थ्योरम बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट थ्योरम। यू रिमेंबर मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन द मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन इजीली स्टेट दैट पी आर एंड बी सी के बारे में कुछ मैं बता सकता हूँ, याद है, यू रिमेंबर दैट। तो चलो मैं लिखता हूँ P and R are midpoints, therefore what I know that PR is parallel to BC and PR is equals to half of BC। पैरेलल मुझे नहीं चाहिए, मैं बस हाफ को लेता हूँ, रीज़न क्या होगा, मिड पॉइंट देना। तो PR अपॉन BC इज इक्वल्स टू, अरे पी क्यू की लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, PR अपॉन BC इज इक्वल्स टू 1/2, राइट, बराबर है ना। देन QR सिमिलरली QR अपॉन AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2 एंड लास्ट फाइनली वी हैव PQ upon AC is also equals to 1/2. So what this gives me? This gives me PR upon BC is equals to PQ upon AC is equals to QR upon AB is equals to 1/2. Right? That means what? Triangle ABC is similar to triangle. अभी ये प्रोपोर्शन कैसे देखो, प्रोपोर्शन देखो ABC है, ABC, और इसका प्रोपोर्शन उसके साथ कैसे आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट लाइक ABC इज प्रोपोर्शनल टू PQR, नहीं है ऐसे, ओके। तो कैसे इसको करना है, प्रोपोर्शन कैसे सेट करना है, देखो AB इज प्रोपोर्शनल टू QR, तो यहाँ पे AB इज प्रोपोर्शनल टू QR हो सकता है या फिर RQ भी हो सकता है, दोनों में से एक, ठीक है। अभी बचा क्या P, अभी इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है दूसरे साइड से देख के पता लगाना है। तो BC इज RP या फिर QP, BC इज PR है, तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इरेज कर दो, दैट्स इट। आई रिपीट अगेन, इफ यू वांट टू से आई जस्ट टेल यू। देखो यहाँ पे देखो AB, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो AB जो है, AB दिख रहा है, AB इज प्रोपोर्शनल टू QR, तो जहाँ पे AB है वहीं पे आप लोग QR लिखो, लेकिन ये साइड है, साइड QR भी सही है एंड RQ भी सही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे RQ भी लिख लेते हैं, बस P लगा दो, ओके, जो बचा हुआ पॉइंट है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। तो अगर P लगा दिया, अभी इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है देखो, चेकिंग द अदर साइड। सो AC को चेक करते हैं, AC इज सपोज टू बी प्रोपोर्शनल टू PQ, यस AC इज सपोज टू प्रोपोर्शनल टू PQ, तो पहला वाला करेक्ट है एंड दूसरा वाला क्या है, रॉन्ग है, तो दूसरा वाला इरेज कर देते हैं एंड ये करेक्ट है, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। बाय व्हाट टेस्ट, SSS टेस्ट। तो इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हाउ अबाउट देयर एरिया, बिकॉज आई एम आस्क्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP जो है वो प्रोपोर्शन लिखो, देयर इज नो ऑप्शन, ओके। सो इट इज इक्वल्स टू AB अपॉन QR द होल स्क्वायर।
तो ए बी अपन क्यू आर कितना है 2/1, 2/1, 2² / 1² विच इज़ 4, 4:1, द रेशियो इज 4:1। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये लास्ट ईयर आपके हेरॉन्स फॉर्मूला में फॉर्मूला था, इसका कहीं ना कहीं यूज़ आपको यहाँ पे करना है दोनों क्वेश्चन में, इसका और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये हो गया, देखो अपना टॉपिक ही खत्म हो गया। दैट्स इट। एज आई सेड टुडे आई एम गोइंग टू फिनिश द टॉपिक और मे बी टुमारो। तो टुडे वी हैव फिनिश्ड इट। ओके, एक HOTS क्वेश्चन रह गया, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट, डन, द टॉपिक इज डन। चलो फास्ट फटाफट ये कंप्लीट कर देते हैं। प्रूव दैट। अभी देखो थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है, डायग्राम भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो वर्क करते हैं। सबसे पहली बात, हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक स्क्वायर हो, इमेजिन, उसके डायगोनल में एंड साइड में एक रिलेशन होता है। दैट रिलेशन आई विल जस्ट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। ये 90 होता है, ये साइड इक्वल होते तो x एंड x हो गया। तो कैन यू फाइंड आउट BD? ओके, तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + x²। चेक कर लो। तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x²। तो इफ आई वांट BD will be equal to √2x, so taking root of both the side, is it equal to √2x? so ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। BD is equals to √2x। चेक कर दो एक बार, दोनों का रूट निकाल दिया, √2x हो गया, बराबर है ना? इज इट क्लियर? तो चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक से समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्वेश्चन। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं रिजल्ट है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। ठीक है, लास्ट ईयर आपको डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर भी हमने बताया था, यू रिमेंबर दैट? नहीं पता, ठीक है, बट याद रखो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से जैसे मैंने प्रूव किया हुआ है वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट की अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग वर्क करते हैं इन क्वेश्चन पे अभी। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो डिस्क्राइब मतलब साइड ऑफ अ स्क्वायर को लेके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया अगर मैंने ऐसा वाला, तो BXC ऐसे करते हैं हम लोग, उस ट्रायंगल को नाम देते हैं। Described on the side of a square is half of the area of an equilateral triangle described on its diagonal। अगर मैंने डायगोनल पे भी ऐसे ही एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये अगर मैंने ऐसे BYD ऐसे किया, तो इसका एरिया इसका हाफ है, मतलब BXC का एरिया जो है, BXC का एरिया वो BYD से हाफ है। सो व्हाट आई हैव टू प्रूव हियर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टू प्रूव area of triangle BXC is equals to half of area of triangle BYD। करस्पॉन्डेंस मैटर नहीं करता बिकॉज यहाँ पे एरिया है, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर इट। एरिया में करस्पॉन्डेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता, सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डेंस मैटर करता है, सो डोंट वरी फॉर इट। तो बस दैट्स इट, ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट वर्किंग। ठीक है ना? चलो सबसे पहली बात, LHS RHS से भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू दैट। तो LHS RHS से करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो RHS लेते हैं, क्योंकि उसमें हाफ वगैरह है इसलिए मैं RHS ले रहा हूँ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BYD। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BYD क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अभी साइड में कौन सी लूँगा? BYD की, कोई भी ले सकते हैं, BD लूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि BD के बारे में कुछ ना कुछ मुझे पता है, BD स्क्वायर। तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू √3/8 इंटू BD मतलब √2x होल स्क्वायर मतलब 2x², बराबर, 2 1 = 2 4 = 8, सो √3/4 इंटू x², बराबर है।
whose area is root 3 by 4 into x square? It is area of triangle BXC. चेक कर दो if you want to check. Otherwise take LHS and prove it. वही होगा ना, root 3 by 4 into x square होगा. That's it. And therefore these two areas are equal. LHS equal to RHS. Finish. काम खत्म. बात समझ में आ गई ना, सिंपल सी बात है. हाँ, बस ये दोनों रिजल्ट ज़्यादा आपको याद हो गए तो ये बहुत इजी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा. ये तो आपको 100% पता ही होगा, 100% पता होगा. ये मे बी आपके लिए कुछ नया हो सकता है पॉसिबली, बट ये पाइथागोरस थ्योरम से इजीली प्रूव हो गया. दैट्स इट, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं. नहीं समझ में आया तो मुझे 100% बताना, मैं फिर से आपको स्लोली समझाता हूँ, या फिर वीडियो को फिर से एक बार देखो, याद हो जाएगा. डोंट वरी. चलो आगे बढ़ते हैं. ये भी वही है. इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर. तो ये और ये जो मैंने अभी डॉट बनाए, ये तीनों के तीनों क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन हाइपोटेन्यूज, मतलब शो दैट ये एरिया मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR इज इक्वल टू, ओके चलो, इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ऑन अदर साइड्स, मतलब इन दोनों के एरिया का सम. एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, राइट. ये हमें प्रूव करना है. चलो वही कॉन्सेप्ट है, LHS RHS ले लो भाई. LHS RHS तो मैं RHS लेता हूँ, थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी हो तो इसलिए सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाता है. तो लेट अस टेक LHS. एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC. लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, तो कीप पेशेंस. ठीक है. PAB का एरिया क्या होगा? रूट 3 by 4 इंटू साइड स्क्वायर. कोई भी साइड ले सकते हैं, तो मैं AB लेता हूँ बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एज वेल. अगर राइट एंगल ट्रायंगल भी कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा तो इट्स बेटर आई टेक अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BQC is also an equilateral triangle, so therefore it is going to be root 3 by 4 into side square. Side square क्या होगा? BC square. तो यहाँ पे root 3 by 4 can be taken common. I am left with AB square plus BC square. तो ये कितना हो जाएगा? root 3 by 4 into AC square हो जाएगा. देख लो, AB square plus B square according to Pythagoras theorem क्या होता है? AC square होता है. And what do you mean by that? ये किसका एरिया है? It is area of triangle ACR, and that's it is equals to RHS. एंड फिनिश्ड, योर वर्क इज डन. ईजी था, इंटरेस्टिंग था, सिंपल था. ये आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. लेट मी टेल यू, ये जो है ये टेक्स्ट बुक का ही है, इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, याद रखो. ओके. एंड कितना किया? इतना ही तो है क्वेश्चन. ये है एंड ये है LHS इक्वल्स टू RHS, बस प्रूव करना है और कुछ नहीं. और ये भी उतना ही सिंपल है. ठीक है. एक बस HOTS क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व है वो रह गया है, वो हम लोग कल करने वाले. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है आसान, बहुत इजी है, स्टेप्स कम है, बहुत छोटा सा है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है. वो हम लोग कल करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट ऑन द सेम डे, बिकॉज अभी आप पेंडिंग कुछ रखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, बिकॉज सून यू आर गोइंग टू गिव द PT1. ओके. तो थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू टुमारो विद द HOTS question and maybe the introduction of the trigonometry. So till then, thank you so much. See you tomorrow.